Good morning, ninth class. I hope you all are well at home, eating healthy food, and following good routine. So, as we have already started revision that we have done in our previous class, revision number 1 related to chapter number 1, matter in our surrounding. So, today we are going to continue same chapter, matter in our surrounding, with different questions. Before starting revision, I would like to share that I am highly disappointed the way you are doing your assignments, especially chemistry. You are copying all answers from internet without understanding what you are writing. Is it required? Is it relevant that you are writing? Please think when you are writing. Try to find out answers from your note that I am telling you and that I am teaching you in videos. Fine, because whatsoever you are copying down from the internet is not at all correct. So please follow your notes, and I hope you all are preparing notes from video itself. So today I have taken few questions from your assignments itself so that I can clear your queries. So first question is, suggest a method to liquefy atmospheric gases. एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करेंगे? सो लिक्विफाई में ही इसका आंसर है लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन में क्या कंडीशन है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जब हम गैसेस का टेम्परेचर लो करेंगे और उसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. मीन्स डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है और आप उसको केल्विन स्केल में चेंज करेंगे. This also I have seen. You have copied from internet and one liner answer. How can you solve a numerical in one line? Please don't do this, because this question will come in 2 marks and I am not at all going to give you 2 marks for that single line answer. Write it properly. 1 mark is for your formula, half mark for putting the values and half mark for solving it. And if you will not write degrees, if you are not going to write this value k, हाफ मार्क विल बी कट. हाफ मार्क आपका कट होगा. सी आई हैव रिटन दीज 3 पॉइंट्स. इसमें 1 मार्क, हाफ मार्क एंड हाफ मार्क. सो टेक केयर व्हाट यू आर राइटिंग. क्वेश्चन इज कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. सो केल्विन वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप. केल्विन के इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सो डिग्री सेल्सियस इज 25. पुट दिस वैल्यू ऑफ 25, add 273. आंसर इज 298 Kelvin. This till this much is of 2 marks. Then next question. This I have given you in assignment as well, and that I have seen you all have copied from internet. 1 mark for writing this formula. K is equals to degree Celsius plus 273. So degree Celsius is in minus 273 degree दिया हुआ है. So minus 273 plus 273. And please, you all are in class 9th and you don't know minus and plus is always minus. So minus plus, plus minus minus. So subtract both the numbers, it will be 0 Kelvin or 0 K. Please take care of these steps what you are writing. You will be getting marks for each and every step. Let's come to next question. Question number 3. Convert 300 Kelvin into Celsius scale and minus 10 degree Celsius into Kelvin scale. दोनों क्वेश्चंस एक साथ हैं. 300 केल्विन को आपको सेल्सियस में चेंज करना है, जबकि माइनस 10 सेल्सियस को केल्विन में. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज राइटिंग फॉर्मूला. सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273. So 300 minus 273, it will be 27 degree Celsius. Next part is convert minus 10 degree Celsius into Kelvin. So degree Celsius कितना आपको minus 10 degrees दिया हुआ है. Kelvin का formula degree Celsius plus 273. Put this value of minus 10 here, minus plus minus.
पर साइन हमेशा प्लस का लगेगा. सो इट विल बी 263 Kelvin. Now next come to question number 4. The melting point of 3 solids. आपको 3 solids दिए हुए हैं x, y and z, जिनका melting point आपको दिया हुआ है. फर्स्ट वन x का 298, y 314 एंड z 398. इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किसमें? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके टेम्परेचर के हिसाब से आपको इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो मेल्टिंग पॉइंट is always related to force of attraction. Melting point will increase if force of attraction is more. Melting point will decrease if force of attraction is less. So सबसे कम force of attraction किसकी होगी? जिसका सबसे कम melting point होगा, that is x 298 Kelvin. इससे ज़्यादा force of attraction किस में होगी? 314 means y, और सबसे ज़्यादा 398 z. अब ये ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ इसको अरेंज करेंगे एंड दैट इज़ ऑल. नो, राइट रीज़न. सो रीज़न इज़ हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा. ऑलवेज राइट रीज़न वाई यू आर अरेंजिंग द थिंग्स इन दिस सीक्वेंस. आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल हेयर. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is account or justify, means give reason. Now this I have given you in assignment. Water is liquid at room temperature and you all have copied wrong answer from internet. लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर या फिर वुड इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज ऑक्सीजन इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे? उस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. लाइक वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपको किस, वाटर क्या है? लिक्विड है, तो आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. वाटर कैन फ्लो, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, और एनीथिंग एल्स, इट हैज़ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज सॉलिड्स. कोई भी प्रॉपर्टी लिखेंगे बट लिक्विड की. ऐसे ही एन आयरन एल्मीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. वाई? क्यों सॉलिड है? तो यहाँ पर आप सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, इट कैन नॉट मूव, देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई. कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको स्टेट ऑफ मैटर की याद होंगी वो लिखनी है. थर्ड इज़ CO2 इज़ अ गैस. सो गैस दिया हुआ है तो आप किसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे यहाँ पे? गैस की. Fine. It has no fixed shape and volume. It is highly compressible. It can flow. It is not rigid. कुछ भी. It is compressible. जो भी आपको प्रॉपर्टीज याद है. बट ये ध्यान रखिए, अगर वाटर लिक्विड है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखेंगे. एल्मीरा सॉलिड है तो सॉलिड की प्रॉपर्टी. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो गैस की प्रॉपर्टी लिखेंगे. सच काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, सो टेक केयर ऑफ दिस. Next question is, for any substance why does the temperature remain constant during the change of state? कोई भी substance का अगर temperature जो है सेम क्यों रहता है जब उसमें change of state हो रहा है? मीन्स अगर आपका आइस क्यूब को आप हीट कर रहे हैं और वो मेल्ट होकर वाटर बन रहा है, तो उसमें आप हीट तो प्रोवाइड करा रहे हैं पर उसका टेम्परेचर क्यों सेम रहेगा? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट. वो हीट जो यूज़ होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. आई होप यू रिमेंबर, एटम्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. दैट इज़ नोन एज बॉन्डिंग. उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ये हिडन फोर्स यूज़ की जाती है. सो योर आंसर इज़ ओनली दिस मच. लेटेंट हीट इज़ यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट. फाइन. Let's come to another question. Question number 7. Why a balloon kept in a sunburst after some time? अगर आप एक बलून को प्रॉपरली फिल करके एयर से बाहर सनलाइट में रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो फट जाता है. ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसके अंदर क्या फिल कर रहे हैं, एयर। एयर में पार्टिकल्स हैं, जब सनलाइट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो तो वॉल्स के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे, जिससे ज़्यादा हाई प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इम्बैलेंस होगा। मींस बलून के अंदर ज़्यादा प्रेशर है बट बलून के बाहर प्रेशर कम है, इस वजह से वो बर्स्ट करेगा। सो हाउ यू विल राइट, it is because pressure exerted by air inside the balloon increases in sunlight। जो प्रेशर exerted by air, जो एयर बलून के अंदर भरी हुई है वो प्रेशर exert करेगी, जिसके वजह से बलून फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वी फील कोल्ड व्हेन वी टच अ पीस ऑफ आइस, वाई। जब कभी भी आप पीस ऑफ आइस को टच करते हैं तो आपको ठंडा फील होता है, क्यों? बिकॉज it is because ice takes heat from our body and therefore we feel cold। आइस क्या करती है, हमारी बॉडी से हीट ले लेती है और उस बॉडी हीट को वो कहाँ यूज़ करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मतलब आप कभी भी आइस को होल्ड करते हैं, आइस को पकड़ते हैं तो ठंडा तो लगता है, लेकिन वो आइस क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो आइस एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उसके बीच में पार्टिकल्स की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगती। तो बेसिकली या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या किया है, आइस ने हीट ले ली है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हमें कूल फीलिंग आती है। लास्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ हनी एंड वाटर विच विल डिफ्यूज फास्टर एंड वाई। आपने एक ड्रॉप हनी डाला है और एक ड्रॉप वाटर डाला है और आप चाहते हैं कि वो बेसिकली बह जाए। किसी कार्डबोर्ड पे डाला है हनी और वाटर, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी फ्लोट करेगी, डिफ्यूज़ करेगी, मिक्स होगी? वाटर। वाई? बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है, मतलब उसमें लिक्विड ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। और हनी में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फाइन। रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज वाटर हैज़ लोअर डेंसिटी देन हनी, हैज़ लेस इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली हनी क्या हुआ, एक तरीके का सेमी सॉलिड हुआ, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो प्लीज़ इन केमिस्ट्री राइट डाउन आंसर्स in points। You are writing very big paragraphs, those are irrelevant। Start writing answers in points, that to point only। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना है, only 1 or 2 lines, those are enough। You can start answer from because, as I have done it here, and always give reason why you are writing that। So please take care of the following things, and the next time I am expecting that you will submit assignments nicely done by you only, not copied from internet। So stay healthy, stay at home, take care, eat good healthy food। Take care, bye।